we started the now has set. We learn array list, linked list is clear. Now we move to has set. कि what is the has set here? तो anyone tell about कि what is the basic definition या basic key of has set? What is the advantage of has set? Anyone tell about? No, if anyone know. तो unique keys, okay. यूनिक की क्या है यहाँ पे? इफ आई से ओके सो basic definition of has set is कि let's suppose we give it a one array, right? This is a giving you one array, ठीक है. Right now you see कि in the array the elements will be repeated, like 8 will be a 2 times here, right? 8 will be a 3 times here, right? 9 will be 2 है, right? 3 will be 2, 5 is 1 and 1 is 1, right? Now we add this all element into set. So what happen? They only store every frequency as a 1, not duplicate. Let's suppose we add a 8 first time, because 8 is not exist in the set. Now 9 will be added, yes. 3 will be added, yes. 5 will be added, yes. Now 8 is coming, 8 is already, so it can't add, मतलब they cannot add in the set. Move to 9, 9 already added, 3 already added, 1 not added, so will add, 8 already added, so this is a set, right? So in the set all the elements are present in the set will be always frequency as a 1, मतलब unique, completely unique. This is a simple definition. What is the use case? When we do a question, you aware about, like array list कब यूज़ करना है, लिंक लिस्ट कब यूज़ करना है, अभी रटने वाली बात हो जाएगी. हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे इन चीज़ों को, कब क्या चीज़ यूज़ करनी बेस्ट है, हाउ टू चूज़ अ बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो वी डू इन क्वेश्चन, बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट everyone clear about, right? Right? Okay. So डिक्लेरेशन अगेन सेम, सेट डॉट डेटा टाइप, यहाँ अभी इंटीजर ले रहे हैं, स्ट्रिंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. सेट नाउ यू हैव सेट, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ हैज सेट, राइट? अब नाउ वी एड अ, मतलब वी एड अ लिस्ट में मोर एलिमेंट, राइट? लिस्ट डॉट एड 7, we add, this is a list item and we remove everything, this is a list item. Now this is we and we print the firstly list. Now we declare as a set, right? So now we print the list also set, ki what happened, right? So you have a two option कि अभी right now we directly pass the list, तो let's see. Okay, okay, this one. So let's see, this is the array list, and when will we add in the set, so what is the output? 9 remove and yeah, 9 remove completely, right? Right? Everyone got it? Set, yes or no? Now हाँ, yeah, nice question. So I will tell, this is whole question will tell you in after 5 minutes, right? So not yet, मतलब ये ऐसा नहीं होता है, बट क्यों, वो मैं अभी रीजनिंग देता हूँ. तो मूविंग डैट की इन दिस हैज सेट वी यूज़ अ हैज फंक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम कि आप डायरेक्टली भी यहाँ पास कर सकते हैं, और यूजिंग यू कैन ट्रेवल्स दिस एलिमेंट, यूज अ डॉट एड फंक्शन विल बी सेम अगेन, डॉट एड, डॉट रिमूव, राइट? डॉट साइज, डॉट कंटेन्स, फंक्शन विल बी सेम. डॉट गेट होता है, एनीवन अवेयर अबाउट इट? डॉट गेट,
एनीवन अवेयर अबाउट? डॉट गेट नहीं होता है सेट में, रीज़न बिहाइंड इंडेक्स से नहीं चलता है. इफ़ यू वांट टू ट्रेवल्स लाइक दैट, मतलब आई वांट टू प्रिंट द सेट यूजिंग अ फॉर लूप और यूजिंग अ इंडेक्स नंबर लाइक दैट, तो इट इज गिव यू एरर बिकॉज इन दी हैश सेट इंडेक्स नंबर नहीं होता है. इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट ही नहीं है हैश सेट में, मतलब होता ही नहीं है. आप लूप चला ही नहीं सकते. सेट डॉट गेट या आई कुछ होता ही नहीं है, मतलब ऐसा चीज़, बिकॉज हेयर यूज अ हैश वैल्यू, नॉट पॉसिबल. तो हाउ टू ट्रेवर्स दी सेट? ऑलवेज फॉर ईच लूप. वन सॉल्यूशन है फॉर ईच लूप. यू कांट यूज इंडेक्स नंबर हेयर, क्योंकि इंडेक्स नंबर होता ही नहीं है सेट में. टू बी क्लियर एवरीवन? apart from now give you your question कि if you add a element in the set, the compiler will decide कि how they print. Maybe right now they print in the sorted. This is wrong. This compiler is very bad, right? I use. So if you add element like this, this is a element, right? 8 9 3 5 1. So set maybe print 9 5 3 8 1. Some compiler, maybe your compiler will be print 8 3 5. मतलब compiler will decide. We cannot force कि you can print like that. If you want to print the order of same order, मतलब you want to print the order just like कि you add a first 3 7 4 9, तो same order they print. तो what can you use? Add a linked list, मतलब use a linked word. Now they print a same order just like you add. let पहले 3 का 3 5 फिर 4 फिर 9 फिर 7. Got it? If you want to sorted order, so what is the condition? Tree set. Use a tree set word. So hash set is a three type of set. One is a hash set, second is a linked hash set, third is a tree set. In the hash set, the order will be not maintained. Thus, the order will be not maintained. Compiler will decide. Every compiler they have own responsibility. When you use a linked hash set, the order will be maintained just like a insertion order. यहाँ पे insertion order will be maintained. If you want to use a tree set, they maintain the increasing order. So now they print a sorted order. So this compiler is very bad कि they print a sorted order but not normally. Okay, got your question? Got your answer मतलब? Okay. Have said or yeah, and depend on your question. You मतलब you we move to a tree data structure, तो I always मतलब वो डिपेंड है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. इन दी हैश सेट और लिंक हैश मतलब इन दी हैश सेट और लिंक दैट सेट और कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ 1. पर व्हेन विल बी यूज अ ट्री सेट, ऑलवेज कॉम्प्लेक्सिटी गोइंग टू लॉग एन. डॉट एड फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन हो जाएगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बैक एंड में हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, राइट? क्योंकि सॉर्टेड किस में मेंटेन होता है? ट्री में, हीप डेटा स्ट्रक्चर से. वो सब आगे पढ़ेंगे और थ्योरी पार्ट में, राइट? गॉट इट? तो एवरीवन क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? हैश सेट सेम फंक्शन होते हैं अवेलेबल, बस इंडेक्स नहीं होती है, वो इम्पॉर्टेंट है, और यूनिक होते हैं. ये दो मेजर पॉइंट हैं, बाकी आपको फंक्शन सेम मिल जाएंगे. और इसमें कॉमन फंक्शन जो बहुत यूज़ होता है वो यूज़ होता है डॉट ऐड और डॉट कंटेंस. क्यों डॉट ऐड करते हैं या डॉट कंटेंस चेक करने के लिए ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं. क्योंकि लिस्ट में डॉट कंटेंस यूज़ क्यों नहीं होता? अगर डॉट कंटेंस यूज़ करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? अगर वो सॉर्टेड नहीं है, लीनियर सर्च हो जाएगी ना कंटेंस की. यस और नो? लीनियर सर्च एल्गोरिथम लगेगी ना अगर योर लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड. यस और नो? if they sorted they use a binary sort, then they complexity log n. बट इसलिए हम डॉट कंटेंट्स का भी यूज़ ही नहीं करते हैं लिस्ट में, क्योंकि वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी. सैड में यूज़ करते हैं क्योंकि डॉट कंटेंट्स का समहाउ ऑर्डर ऑफ 1 बोला जाता है, राइट? ठीक है, तो दिस इज अ हैश सेट डेफिनेशन, जस्ट नॉट मेजर बिग डील, राइट? मूव टू हैश मैप. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस 3 डेटा स्ट्रक्चर, कॉमन डेटा स्ट्रक्चर जो यूज होंगे टिल एंड ऑफ द कोर्स तक. कोई भी डाउट है यू कैन आस्क.
हाँ नॉर्मली जो जावा होता है ना, द मेमोरी एलोकेशन ऑलवेज यूज बाय न्यू एंड दे क्रिएटेड अ मेमोरी हीप ऑलवेज इन दी मेमोरी हीप, राइट. तो दिस इज अ जावा, मतलब बिल्कुल बेसिक्स ऑफ जावा वेयर वी कैन, मतलब थोड़ा सा, मतलब वो चीज़ कभी, मतलब यहाँ मैं क्लास ऑब्जेक्ट वो सब नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि वी हैव नॉट. बट हाँ, अगर इफ़ यू वांट टू लर्न तो गो विथ मतलब न्यू कीवर्ड उसी तरह से काम करता है. एंड इट इज़ कंपल्सरी, विदाउट न्यू यू कांट डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, राइट. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट हैश मैप. या नो, मतलब दिस इज जस्ट फॉर यू, मतलब समझाने के लिए, राइट. इफ़ यू नीड डॉट ऐड, सपोज करो कि मुझे कभी ऐड करना होगा तो मैं किसी किसी डेटा स्ट्रक्चर से ऐड कराऊंगा, या तो मे बी एरे से. आई कैन ऐड अ एलिमेंट फ्रॉम द एरे टू लिस्ट, राइट. तो डायरेक्टली मैं एरे को रीड करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप, राइट. बट अगर ये तो समझाने के लिए कि डॉट ऐड फंक्शन होता है, राइट. क्वेश्चन करेंगे, यू कैन डिफर, राइट. ठीक है, नॉर्मली डॉट ऐड मतलब फॉर के अंदर चलाते हैं इफ़ नीड पड़ती है, जब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, जब क्वेश्चन पे बस मूव हो जाएंगे अब हम जल्दी. ठीक है, मूव टू हैश मैप. चलें हैश मैप की साइड. सो वन डिसएडवांटेज ऑल्सो, एवरी वन नो पॉइंटेड हेयर. आई विल फील कि कोई पॉइंट कर सकते, एक डिसएडवांटेज और होता है एरे का. एनी वन, अभी भी चांस है कोई पॉइंट करेगा, उसी का ओवरकम है ये हैश मैप. एनी वन, नहीं. वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ एरे. एनी वन, चलो. नहीं दिस. हाँ, करेक्ट करेक्ट. या लेट सपोज आई हैव अ नीड, मेरी नीड है, आई हैव नीड, आई वांट टू इंडेक्स नंबर 9, इंडेक्स नंबर 49, इंडेक्स नंबर 89 और इंडेक्स नंबर 1999, एंड मे बी इंडेक्स नंबर सम हाउस 59. दिस इज अ 5 इंडेक्स वी नीड टू यूज. तो इफ वी यूज अ एरे, हाउ मच लेंथ विल वी नीड टू डिक्लेयर, हाउ मच लेंथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट लेंथ कितनी होगी. not 1000, right. Right, if we use a array we declare a 1000 element, मतलब 1000 elements of the array, and we use only 5 indexes. So the waste of memory is a 995. Yes or no. This is a simple case, मतलब this is a 1000 is very low amount, but aware about 10 lakh, 10 crore, so it is very मतलब big deal, right. Waste of memory, so they overcome the waste of memory. And how, तो इन दी, और हैश मैप इज़ अ प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ मिलेगा, लोग करते हैं, राइट. सो हैश मैप जनरली अ की वैल्यू पेयर, डेफिनेशन इज़ अ की वैल्यू पेयर, राइट. अब एनी वन एवरी नो की मतलब की अभी हमने पढ़ा ना हैश सेट में, तो की ऑलवेज बी यूनिक, वैल्यू में बी रिपीटेड और नॉट. तो की ऑलवेज यूनिक बिकॉज इंडेक्स क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है ना, इंडेक्स नेवर बी रिपीटेड, राइट. मतलब इंडेक्स ऐसा नहीं होता ना 0 1 1 हो जाए, 0 1 के बाद 2 ही होगा. यस और नो. जो इंडेक्स का ग्रुप होता है वो यूनिक होता है, नहीं होता है, राइट. सो एंड वन बिग एडवांटेज कि वी डायरेक्टली यूज अ हैश मैप एंड वी नीड लाइक की और वैल्यू पेयर, लाइक वी नीड अ इंडेक्स नंबर 9 विद द वैल्यू ऑफ, लेट सपोज नेमिंग है, मतलब 9 इज अ शोइंग अ स्टूडेंट आई डी एंड नेमिंग इज अ अनी, राइट. Right, we use the index number 89 and we use a omans, right.
वी इज़ अ इंडेक्स नंबर सपोज करो कि 29, वी यूज़ अ एनी नेम हेयर इज दी स्नेहा, राइट, एनीथिंग, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, जेसन फाइल वैल्यू एनीथिंग, एक लिस्ट भी हो, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एक इंटीजर भी हो सकती है। बस एडवांटेज क्या है, की का डेटा टाइप और वैल्यू का डेटा टाइप डिफरेंट रख सकते हैं, यहाँ पे सेम भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इंटीजर कॉमा इंटीजर या इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर की स्ट्रिंग भी हो सकती है सम केस में। तो वो क्वेश्चन करते करते समझ में आएंगे कि कब क्या रखना है और कैसे रखना है। बट बेसिक डेफिनेशन ऑफ हैश मैप की वैल्यू की है, एंड की मस्ट बी यूनिक, यू न कांट स्टोर अ 9 with again with other word like suppose hers, right, you can't do, if 9 अगर आएगा तो दोबारा क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देगा वैल्यू को, राइट, क्या कर देगा, रिप्लेस, पर 9 एज अ की दो बार नहीं बन सकती, दिस इज अ एडवांटेज। और अगर मैं कहूँ कि की का एक ग्रुप बना दो डायरेक्टली, वो हैश सेट नहीं हो गया, यस और नो, यस और नो, राइट। तो आप डिक्लेरेशन वही थोड़े मेथड इसमें चेंज हो गया, कोई सेम नहीं होते हैं, मतलब डॉट ऐड वगैरह नहीं होते हैं। तो वी लर्न अबाउट, लेट सपोज वी टेक अ इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, हियर इज अ दो डेटा टाइप, फर्स्ट इज अ की, सेकंड इज अ वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द योर क्वेश्चन यू कैन डिफाइन इंटीजर कॉमा इंटीजर, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, इंटीजर कॉमा बुलियन, एनीथिंग, या इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर भी होता है, राइट, इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंटीजर भी होता है, मतलब बहुत डीप तक होता है, उसके अंदर इंटीजर कॉमा जेसन ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो आप, एनीथिंग, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एंड यू डिक्लेयर अ हैश मैप, सेम, जैसे रेफरेंस रेट, यस यू कैन डू, बट उसका कोई मतलब की में कुछ भी हो सकता, हाँ हाँ वही, हाँ राइट राइट, वो योर, राइट राइट, वो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, की और वैल्यू का डेटा टाइप यू कैन डिफाइन, दिस इज़ योर हैंड, राइट। मैं हो सकता है कि कल को एक नई क्लास बना दूँ, सपोज क्लास, और मैं बना रहा हूँ सम सॉल्यूशन नाम से, और मैं एज अ सॉल्यूशन इसको वैल्यू ले लूँ, राइट। तो इट डिफरेंट, ये बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ केस है, इतना मतलब क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे, तो नो बिग डील, बट अभी बेसिक से समझ, ठीक है। नाउ वी यूज़ अ एडिशन, तो यहाँ यूज़ होता है मैप डॉट पुट, नॉट एड डॉट पुट, एंड इन पुट वी पास दी की कॉमा वैल्यू, तो की एज अ 9 कॉमा अनी, राइट, वी पास दी मैप डॉट पुट, अगेन पास दी 29 कॉमा स्नेहा, राइट, वी पास दी मैप डॉट पुट 89 कॉमा ओमांस, राइट। नाउ अगेन वी पास दी 9, तो वाट दे नॉट क्रिएट अ न्यू, मतलब की ओनली रिप्लेस दी वैल्यू, सेम लिख सकते हो, बट दे नॉट क्रिएट अ न्यू की, बस ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ अ मैप, मैं अभी डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा फॉर कैसे यूज़ होगा, दिस इज़ अ मैप, एंड वी कमेंट, राइट। अगेन इसमें भी तीन तरह के मैप होते हैं, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ट्री मैप, डेफिनेशन डिक्टो सेम, हैश मैप ऑर्डर विल बी नॉट मेंटेन, लिंक्ड हैश मैप इंसर्शन ऑर्डर विल बी मेंटेन, ट्री मैप की सॉर्टेड में, मतलब की के हिसाब से सॉर्टिंग मेंटेन, अगर मैं टी लगा दूंगा ट्री, तो द आउटपुट विल बी प्रिंट होनी चाहिए 9, 29, 89, क्योंकि 9, 29, 89 की के हिसाब से सॉर्टिंग होगी वहाँ, एवरीथिंग जो मैप होता है वो की के हिसाब से होता है। लिंक्ड हैश मैप ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करेगा, तो यानी 9, 29, 89 अभी भी सेम आएगा, बिकॉज हमने वैसे ही लिखा है। एंड हैश मैप अभी आप देख चुके होंगे कि ऑर्डर विल बी नॉट मेंटेन, सेम डेफिनेशन, ठीक है। एवरीवन क्लियर अबाउट?
लेक्सोग्राफी, लेट सपोज इसको अगर मैं सॉर्ट लगाऊंगा, अनी, स्नेहा, ओमांस और हर्ष को सॉर्टिंग करने जाऊंगा तो क्या आएगा, पहले अनी, फिर हर्ष, फिर स्नेहा, फिर ओमांस, नहीं ओमांस फिर स्नेहा, राइट। अगर मान लो दो वर्ड होते, जैसे ये होता अनी, राइट, ऐसा होता चेंज दी अक्षित, तो क्या होगा ऑर्डर सॉर्टिंग, अक्षित पहले आता फिर अनी आता, लेक्सोग्राफी सॉर्टिंग होती है स्ट्रिंग की जो हमने पढ़ी है, राइट। ठीक है, ठीक है, मूव अहेड। अब वी वांट टू रिमूव समथिंग, तो मैप डॉट रिमूव, रिमूव में क्या पास करना होगा, की, नॉट अ वैल्यू। यहाँ पे जो भी काम होगा हमेशा की से होगा, ठीक है। तो क्लियर अबाउट, क्योंकि की ही इसमें प्राइमरी थिंग है जो आपको यूनिक डिनोट कर रही है ना, स्टूडेंट आईडी जैसे यूनिक होती है एक ऑब्जेक्ट वो। तो की क्या हो सकता है, या तो आप पास करा 59, तो क्या होगा इसमें 59 एग्जिस्ट नहीं करता, रिमूव नहीं करेगा, कुछ गड़बड़ नहीं आएगी, बट पास कर सकती हो आप, एरर कुछ नहीं आएगी। बट इफ़ यू पास दी 89, तो दे रिमूव दी 89 ओमास कंप्लीट वर्ड इन दी मैप, ठीक है, गॉट इट। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, तो सेम फंक्शन होता है गेट, राइट, मैप डॉट गेट, दे रिटर्न दी या एनीथिंग। लेट सपोज अगर तुम 59 करोगे तो दे गिव यू एरर में, राइट, मे बी शायद ये वाला कंपाइलर टू कंपाइलर भी होता है, एरर भी कई बार देना चाहिए, वैसे नहीं नल दिया, बिकॉज 59 से की एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट अगर यू पास दी 29, तो दे गिव यू स्नेहा, राइट, डायरेक्टली अगर आपको फैच करना हो कोई भी, ठीक है। मेन फंक्शन की आपको चेक करना हो ये की एग्जिस्ट करती है और नहीं, तो क्या फंक्शन होगा, मैप डॉट कंटेन्स की को चेक कर सकते हो। यू पास 59, दे रिटर्न अगेन फॉल्स, इफ यू पास समथिंग लाइक 89, दे रिटर्न अ ट्रू, राइट। 89 ट्रू नहीं, एक सेकेंड अगेन, सॉरी, हाँ ओके, ठीक है। तो और वन मोर फंक्शन ऑल्सो अवेलेबल है, कंटेन्स वैल्यू। अब ये वैल्यू है तो अंदर इंटीजर पास नहीं कर सकते, वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो यहाँ कोई स्ट्रिंग वो चेक करने के लिए अगर मैं पास करूँगा कुछ, मतलब अनदर वर्ड हेयर इज़ दी हर्ट्स, राइट, जो नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स उस केस में। बट अगर इफ़ आई पास अनी, दे रिटर्न अ ट्रू, सेम वो वैल्यूज़ पे चलेगा, ओनली वैल्यूज़ पे, ठीक है। क्या हुआ अगेन, सॉरी नाम रिप्लेस किया है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक फंक्शनलिटी वी यूज, ऐड, पुट, गेट, रिमूव, कंटेन्स की, कंटेन्स वैल्यू, और साइज इसमें 6 होता है। मैप डॉट साइज क्या देगा, साइज ऑफ द मैप, ठीक है। बट नाउ हाउ टू ट्रेवल्स दी मैप, तो हेयर इज अ टू बेस्ट वे you can use. If you need like that key, you can traverse like using a key मतलब फॉर ईच लूप, इंडेक्स नंबर नहीं होता इसमें, अगेन इंडेक्स से तो कर ही नहीं सकते, तो फॉर ईच लूप से करेंगे। और कैसे, मैप डॉट की सेट क्या करेगा रिटर्न, एवरीवन टेल अबाउट व्हाट इज अ की सेट रिटर्न। मैप डॉट की सेट क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट भी कराऊँ डायरेक्टली तो देख लो क्या होना चाहिए मैप डॉट की सेट में प्रिंट, एनीवन टेल अबाउट, सारी की को एक लिस्ट बना देगा, 9, 89 और 29, दिस इज अ की, एंड एक एक करके की आएगी, एंड नाउ यू कैन प्रिंट दी मैप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की, जैसे भी की उसके बाद प्रिंट करा सकते हो आप मैप डॉट गेट की, क्योंकि की से वैल्यू तो पता कर सकते हैं ना, तो हम इस तरह प्रिंट करा सकते हैं आराम से, तो ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हम तो प्रिंट वगैरह नहीं कराएंगे ना, इन दी क्वेश्चन वी कैन यूज़ मैप डायरेक्टली, तो उसके लिए ये बहुत यूज़ होगा। एंड वन मोर फंक्शन, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ पे चलाओ, जब वैल्यूज़ पे चलाओगे तो डेटा टाइप विल बी चेंज इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, एंड हेयर इज दी वैल्यूज़ हो जाएगा। आपको नेमिंग से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, की सेट क्यों लिया है, की पिक कर रहे हो, सेट क्यों लिया है, सेट विल बी या यूनिक, तो नेम दिया की सेट इन्होंने जानबूझ के।
वैल्यूज़ क्या होती है, रिपीटेड होती है, वैल्यूज़ नाम दिया, एंड नाउ डायरेक्टली आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, पर वैल्यू से कभी की प्रिंट नहीं करा सकते, राइट। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, राइट। देखो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। तो योर क्वेश्चन कि अगर आपको सिर्फ वैल्यूज़ से काम है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ वाला चला लो, नहीं तो बेस्ट लूप तो यही होता है कि आप ये चला लो की और वैल्यू वाला, राइट। ठीक है, फॉर ट्रेवर्सिंग दी मैप। सबको समझ में आया मैप डेटा स्ट्रक्चर? यस और नो? मैप डॉट वैल्यूज आप डायरेक्ट प्रिंट भी करा के देखना चाहते हैं तो या ये क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ योर वैल्यूज, ठीक है। तो दिस इज अ टू वे यू कैन यूज। तो दिस इज द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग दी क्वेश्चन, मतलब वी यूज़ अ कॉमन है, मैप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मैप और सेट। एरे लिस्ट लिंक लिस्ट इतना भी नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन पहुँचेंगे तब आएगा। तो क्लियर एवरीवन? we move to question या any doubt? Okay, so start from the first question here. So how to we'll discuss, right? Will so you first you can read question, और मुझे आफ्टर रीडिंग यू कैन से कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। इफ़ यू अवेयर अबाउट द क्वेश्चन, थिंकिंग आई गिव यू 5 minutes फॉर थिंकिंग द अप्रोच हाउ दे, एंड गिव यू सम ब्रूट फोर्स ऑल्सो, ऑप्टिमल अप्रोच ऑल्सो, एवरी अप्रोच चाहे वो गंदी भी कितनी हो, बट डिस्कशन करना है। 5 minutes यू कैन थिंक and you can share your approaches one by one, right? After that I will give you best approach and then do a code and submit, right? So this is like we do from today. And in your GitHub, please, already I say ki add yourself in GitHub, already I added most of the people, right? So every people already added here. Check if anyone is pending, please accept your invite, and every question here, राइट। कि जैसे मैं कल जो कराऊंगा वो मैं पहले ही डाल लूँगा, तो एटलीस्ट ट्राई करके आओ घर से पूरा, फिर यहाँ पे डिस्कशन, मतलब हो सकता है ना 5 मिनट में लॉजिंग ना आए, बट घर पे ट्राई करके आओगे, यू कैन शेयर योर मतलब अप्रोचेस एंड वी ऑप्टिमाइज दिस अप्रोचेस, राइट, एंड स्टार्टेड फ्रॉम गेटअप फ्रॉम टुडे, राइट। सो या यू कैन रीड दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट योर अप्रोचेस बिफोर मूविंग। एनीवन हैव नो क्लियर क्वेश्चन नहीं समझ में है तो यू कैन आंसर। कॉपी पेन लेके बैठो सर, थोड़ा मन में सबके नहीं आता, कॉपी पेन में 3-4 टेस्ट केस और बनाओ, ड्राई रन करो, सोचो जो अप्रोच है, मतलब 3-4 अगर टेस्ट केस चल रहे हैं कोड करके देखो, तो ये घर पर ट्राई करके इतना आना है, एटलीस्ट सबमिट करके आना, कुछ गलत करके आओ, सॉल्यूशन तो यहाँ डिस्कस करेंगे फाइनल ऑप्टिमल तक। सबको क्वेश्चन समझ में आया? एवरीवन अवेयर अबाउट द क्वेश्चन? एनी डाउट इन द क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन? सबको समझ में आया क्वेश्चन?
Yes or no? Yeah, so you have a given a one array and also given a one target. You need to find two indexes. When you add this nums, so they may be equal to a target. So and you can return the index number जो जैसे मैच कर जाएंगे, राइट. एंड दे अश्योर कर रहा है कि ईच इनपुट हैज़ एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन. तो या एंड यू कैन रिटर्न आंसर इन ऑर्डर, मतलब 0,1 या 1,0 दे नॉट इम्पैक्ट योर आंसर. And in the lead code you can only write the function, not write the input or output. Only they giving you pass the arguments as a input and you can return the output as a integer array and they take care of input output. Only you need to fill this function. And also interview also want to you can fill this function. They cannot write input or output. ये नहीं कराएगा, और कराएगा तो इतना कोड आता है हमें, कोई बड़ी बिग डील नहीं है इनपुट और आउटपुट लेना. ठीक है. तो या स्टार्ट योर जो भी अप्रोच आ रही है बोलना स्टार्ट करो. हाँ, मतलब जो भी जिसके दिमाग में जैसी भी अप्रोच आ रही है, इससे आपकी लर्निंग ये होगी कि गलत चीज़ें. हाँ, स्टार्ट. ओके. हैश मैप से पहले कोई वर्स्ट वाली बताओ, मैप फिर करते हैं. मैप्स के विदाउट बताओ क्या कर सकते हैं. हाँ हाँ बताओ. करेक्ट. राइट. एन इट्स टेक फॉर के अंदर फॉर लग रहा है तो एन स्क्वायर हो गई, राइट. एन स्पेस हो गया ऑर्डर ऑफ 1 बिकॉज वी कांट यूज एनी स्पेस, राइट. तो या दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच. मूव टू सॉर्टिंग कर सकते हैं क्या इसमें यूज. बताओ सॉर्टिंग इज पॉसिबल सॉल्यूशन. एनी अदर अप्रोच कर सकते हैं. एनी वन की कर सकते हैं क्या ये अप्रोच, सॉर्टिंग करके 2 पॉइंटर. थिंक अगेन, रीड क्वेश्चन अगेन. हमको रिटर्न करना है इंडेक्स नंबर. इफ़ वी सॉर्ट द एलिमेंट वी डेस्ट्रॉय द इंडेक्स नंबर एंड वी कांट रिटर्न एग्जैक्ट इंडेक्स नंबर, राइट. तो वो पॉसिबल होता अगर सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना होता. यहाँ पे करना है इंडेक्स नंबर. तो ए सॉर्टिंग सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट, राइट, फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट इट. क्यों नहीं कर सकते, अब समझ में आया. ठीक है. तो सॉर्टिंग नहीं है. आप बताओ मैप, मतलब और कोई हो मैप के अलावा कोई हो तो पहले बताओ. मैप से पहुँचने से पहले किसी के दिमाग में कोई और आ रहा हो इसके अलावा है. नहीं है ना. चलो मैप का बताओ, मैप का कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ मैप हियर. कोई बता रहा था स्टार्टिंग में, बताओ. तो राइट. ऐसा क्यों किया, रीजनिंग दे सकते हो, ऐसा क्यों किया. राइट. राइट. करेक्ट. तो देखो कैसे मैप आपके दिमाग में आएगा, मैं वो सिखाता हूँ इस क्वेश्चन से. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, ए प्लस बी इक्वल टू टारगेट, यही था. हाँ या ना. क्वेश्चन यही बोल रहा था ए प्लस बी इक्वल टू टारगेट, यस और नो. एंड ए और बी की इंडेक्स नंबर रिटर्न करनी थी, मतलब और ए और बी की इंडेक्स नंबर रिटर्न करनी थी. ए बी सम वैल्यू ऑफ नम्स, राइट.
इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू टारगेट माइनस ए, एक ही बात है नॉर्मल मैथ की टर्मिनोलॉजी में, राइट। अगर हमको ए पहले से हम मतलब मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न करनी है, जो हमें रिटर्न करना होता है वो हमेशा वैल्यू में रखो, क्योंकि आप कभी वैल्यू से की आ सकते हो। अगर मैंने की पे अगर इंडेक्स नंबर रखी और वैल्यू पे कुछ और रखा तो वैल्यू से की पता कर सकते हो आप? नहीं ना। जो हमको रिटर्न करना है मतलब वो हमकी नीड है, हमको चाहिए, तो उसको कहाँ पे रखना चाहिए? हमेशा वैल्यू पे। अब मैप कैसे आएगा? या जो ये टारगेट माइनस ए है, ए क्या है यहाँ पे? जो पहले आ चुका होगा एरे में, आई, और मतलब फॉर के अंदर फॉर था, ये ऐसे समझो। कोड जो था वो 1 सेकंड लगेगी मुझे लिखने में, 1 सेकंड। बाय डिफॉल्ट जो कोड था ब्रूट फोर्स, इक्वल टू आई प्लस 1 से, राइट, यही कर रहे थे। ब्रूट फोर्स तो सबको क्लियर थी ना, हाँ या ना? आई प्लस नम्स ऑफ जे इक्वल टू टारगेट एंड देन यू कैन रिटर्न दी एरे, मतलब इंडेक्स विद आई कॉमा जे। ये आपकी ब्रूट फोर्स होती है, और लूप के बाहर आके कोई नहीं मिलता तो रिटर्न नल कर देते हैं, ये आपकी ब्रूट फोर्स होती। तो आप ये चेक कर रहे थे आई क्या हो गया इसमें, हमेशा फिक्स हो गया जो पहले आ चुका होगा, और जे हमेशा क्या होगा, आगे चलेगा ना। मतलब पॉइंटर जो आपके होंगे, आई हमेशा पीछे होगा, जे से तो हमेशा पीछे होगा ना। इस लूप में यही तो हो रहा है, हाँ या ना? राइट। अगर मुझे ये लूप रिमूव करना है कम्प्लीटली तो इसको पहले से कहीं प्री स्टोर, यार आपको ऐसे समझो किसी चीज़ को, ये रन टाइम पे चल रहा है, अगर आपको कम्प्लीटली रिमूव करना है ये कोड को, तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर तो करके रखना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास अभी 10 किलो, मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ, 10 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट थी तो ठीक है, 100 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट हो गई तो हमने 100 किलो के लिए कहीं स्टोर करके तो रखोगे कि नहीं रखोगे? हमेशा 10 किलो ख़त्म हो जाएगी तभी मंगाओगे, ऐसे तो कस्टमर लौट जाएगा ना दुकानदार से, हाँ या ना? प्री स्टोर करके रखते हो ना, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, और ख़त्म होने से पहले उसे फुलफिल कर देते हो, ऐसी चलती है ना दुकान है, राइट। तो ये चीज़ क्या है, रन टाइम पे स्टोर हो रही है, उसको पहले से प्री स्टोर करके रखो, जिससे क्या होगा, कस्टमर भागेगा नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कम होना स्टार्ट होगी। और प्री स्टोर कैसे कर सकते हैं? नम साइज जो आ रहा है वो पहले आ रहा है, जे से पहले आ रहा है, नम साइज नम से जे से पहले आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अब मैं ड्राई रन करके चलाता हूँ। सपोज मैं एरे चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा ढंग का एरे ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2, मैं कॉम ले रहा हूँ 11, फिर ले रहा हूँ 5, फिर ले रहा हूँ 7, एंड नाउ वी टेक अ 15, एंड नाउ टू चेक अ टारगेट वैल्यू इज 9। तो पहले आया 2, 9 माइनस 2 क्या हुआ? 7, राइट। 7 क्या आना चाहिए? पहले आना चाहिए। 7 अगर पहले आया होगा तो कहीं ना कहीं मैप में होगा ही नहीं होगा, राइट। और मैप में अभी नहीं है तो इसका मतलब 7 अभी तक नहीं आया, और नहीं आया तो मैंने क्या किया, 2 के साथ इंडेक्स नंबर स्टोर करा दी, 2,0। इंडेक्स नंबर क्यों स्टोर करा रहे हैं? इंडेक्स नंबर रिटर्न करनी है, ठीक है। और चेक जो कर रहे हैं वो टारगेट माइनस के साथ चेक कर रहे हैं, तो मतलब की एज अ 2 स्टोर करा दिया, राइट। मूव टू नेक्स्ट, 11 आया तो 9 माइनस 11 क्या हुआ? -2। -2 क्या एज अ की प्रेजेंट है? नहीं, नहीं है, तो मैंने क्या किया, 11 के साथ 1 स्टोर करा दिया। मूव टू 5, तो 9 माइनस 5 क्या हुआ? 4। 4 क्या होना चाहिए? इससे पहले आया हुआ तो काम बन जाता, पर 4 है ही नहीं, तो क्या होगा, 5,2 स्टोर हो जाएगा। मूव टू 7, 9 माइनस 7 क्या हुआ? 2, यानी 2 क्या होना चाहिए? 7 से पीछे होना चाहिए, और 7 से पीछे वाले एलिमेंट मैंने स्टोर कर रखे हैं। क्या स्टोर कर रखा है? 2 मिला हुआ, और उसकी इंडेक्स नंबर भी स्टोर है, तो हमारा काम हो गया नहीं हो गया? अंदर वाला लूप रिप्लेस हो गया नहीं हो गया आराम से? यस और नो? तो अब मुझे यहाँ पे मिल गया और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, आगे मैं चलाऊंगा ही नहीं लूप। अगर नहीं, और एक सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, अगर मान लो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता तो लूप पूरा चलता, बाहर आके रिटर्न नल करा देते। अब आया समझ में सबको? क्योंकि 2 की इंडेक्स नंबर तो यहाँ से मिल जाएगी, और 7 यानी करेंट आपका आई जहाँ पर आप खड़े होंगे वहाँ से मिल जाएगी, तो हमें दोनों इंडेक्स नंबर मिल गई, स्टोर किया, रिटर्न किया। समझ में आया? यूज़ केस पहला मैप का, यस और नो? सबको समझ में आया? हाँ या ना तो बताओ, ठीक है।
अब नॉर्मली बस कोड क्या है कि मैप डिक्लेयर कर लो। मैप का डेटा टाइप क्या होगा, की और वैल्यू का की क्योंकि हम वैल्यू और दोनों इंटीजर कॉमा इंटीजर ले रहे हैं। नॉर्मली चेक क्या कर रहे हैं मैप में, मैप डॉट कंटेन्स की में क्या चेक कर रहे हैं, टारगेट माइनस नम साई, यस और नो, या तो ये मिल जाए। एल्स में क्या होगा, मैप में डाल देंगे, मैप में डाल देंगे क्या, मैप डॉट पुट के साथ क्या डाल दोगे, नम्स ऑफ आई कॉमा आई, हाँ या ना, जो हम बोल रहे थे वही किया। अगर नहीं मिलता है तो मैप में वैल्यू कॉमा इंडेक्स नंबर ऐसा डाल देंगे। अगर हमें मिल जाता है तो कंटेंस मतलब टारगेट माइनस नम साइज, तो यहीं पर रिटर्न कर दोगे, रिटर्न न्यू इंटीजर, क्या रिटर्न करोगे, एक तो आई और दूसरा क्या रिटर्न कर सकते हो, मैप डॉट गेट, इंडेक्स नंबर चाहिए ना तो डॉट गेट से निकाल लोगे, टारगेट माइनस नम साइज, ये रिटर्न हो गया। और लूप के 12 के अंदर हो रहा हो ये कमेंट्स डाउन। ठीक है, समझ में आया आप सबको। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सब बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जो ब्रूट फोर्स थी वो थी एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ 1, राइट। अब क्या हो गई, एन हो गई, एन टाइम्स एन हो गई और स्पेस एन बढ़ गया क्योंकि हमने स्टोरेज यूज़ कर लिया, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस बढ़ गया ऑर्डर ऑफ एन। तो इस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ किया और इससे नीचे हम ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, राइट। तो दिस इज अ वन यूज केस की हाउ टू यूज मैप। समझ में आया आप सबको। ठीक है, तो अब मैं आज क्वेश्चन दूंगा क्योंकि आज क्वेश्चन दूंगा, आगे आपको ट्राई करके आने और कल से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। क्वेश्चन में आपको उस लिस्ट में अभी 10 मिनट के अंदर